सूज जाता है, वो धीरे धीरे करके उसको जगह मिलती नहीं और धीरे धीरे करके मुंह सूज जाता है उनका, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। अरे और कीड़ा लगना ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? उसी को ही सर कैविटी कहते हैं। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਕੈਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। असल में वो कैविटी होती है, इंग्लिश में हम कैविटी। आजकल की जनरेशन बहुत कुछ खाती है, पहले इतना जंक फूड नहीं होता था जो अब है ना। तो पहले के टाइम में और अब के टाइम में बहुत फ़र्क है। ਜੰਕ ਫੂਡ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि आप ये देखो ना, अगर आप बर्गर खाते हो सिंपल, उसमें चीज़ की लेयर्स कितनी होती है, चीज़ का सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਵਾਈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੈਤੋ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੈਤੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕਿ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ। ਤਾਂ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਤੌਰ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਂਟਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਂਟਿਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਤੌਰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਦ ਗਏ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੰਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੁਝ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਟਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਿਤਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। नमस्कार जी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਦੰਦਾਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਡਾ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। सबसे पहले बीमारी तो है गम डिजीज़ेस। सेकंड पे आ जाता है जिसको हम कहते हैं रूट केनाल ट्रीटमेंट, जिसमें हम कह देते हैं नस का इलाज होना। ठीक है जी। उसके बाद और भी बीमारियां हैं, जैसे लाइकन प्लानस हो जाता है, साथ में माउथ अल्सर्स हो जाते हैं, जिनको हम एप्थस अल्सर्स भी कह देते हैं। अगर आप ज़्यादा सिगरेट्स पीते हो, एल्कोहल्स लेते हो, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप मीठा खाते हो, सॉल्टी ज़्यादा खाते हो, राइट। अगर हम सबसे पहले बात करें गम डिजीज़ की, तो गम डिजीज़ होती क्या है, मसूड़ों की प्रॉब्लम है क्या। सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपको इसको कैसे बचाना है। ठीक है। तो रात को जब भी आप सोते हो, राइट, सोने से पहले आपको ब्रश बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्रशिंग नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे करके अंदर ही अंदर इन्फेक्शन पनपता जाता है, जो दांतों के ऊपर परत तो जमाता है, लेकिन जो मसूड़ों के अंदर अगर ज़रा सा भी गैप हो गया इन बिटवीन द टूथ, तो वो अंदर ही अंदर जाके कैविटी क्रिएट कर देता है दांत के अंदर, और मसूड़ों के अंदर सारा का सारा जो भी खाना है, फूड बेवरेजेस है, वो धीरे धीरे करके अंदर चले जाते हैं। तो जिसकी वजह से ये गम डिजीज़ हो जाती हैं। इससे सबसे पहले तो पायरिया बोल देते हैं, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह देते हैं पायरिया हो गया जी, है ना। तो उसके लिए ये है कि आप डेंटिस्ट के पास विजिट करो, क्योंकि आप ब्रशिंग करोगे तो वो नहीं निकलेगा। ब्रश के साथ अगर आप करोगे तो वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, आपको खुद डेंटिस्ट के पास विजिट करना पड़ेगा। हमारे पास इक्विपमेंट्स है, जैसे अल्ट्रासोनिक यूज़ करते हैं हम, उसके साथ हम स्केलिंग करते हैं। फिर स्केलिंग से जो बाहर की जो परत होती है, जिसको हम कैलकुलस कह देते हैं, पहले प्लाक होता है। प्लाक में क्या मतलब होता है कि सॉफ्ट डिपॉजिट्स, अगर आप धीरे धीरे एकदम से कभी भी वो इतना बड़ा नहीं होता है, डिजीज़ेस धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ती हैं। तो सबसे पहले प्लाक होता है जिसमें सॉफ्ट डिपॉजिट्स होते हैं। अगर आप वो क्लीन नहीं कर पाते हो, ब्रशिंग टेक्निक भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रश आप अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हो तो उससे भी प्रॉब्लम्स होती है, वो मैं बाद में बताऊँगी कि टेक्निक कैसे यूज़ की जाती हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले क्या है कि आपको जो अंदर की गम डिजीज़ है उसको क्लीन करने के लिए बस यही है, एक तो आपको रूटीन में ब्रशिंग सुबह शाम, ठीक है जी, और आपको लिस्ट्रीन जैसे माउथ वॉशेस आते हैं वो यूज़ करना बहुत ज़रूरी है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है जी। और बाकी आप जो भी नियर बाय आपके डेंटिस्ट हैं उनको आपको
उनके पास जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो सारा कुछ आपका बता दें कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे आपको। ठीक है जी। और बाकी स्केलिंग के बाद हम आ जाते हैं पॉलिशिंग पे। स्केलिंग के बाद पॉलिशिंग इसलिए ज़रूरी है, वैसे ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, स्केलिंग प्लस पॉलिशिंग। स्केलिंग के बाद पॉलिशिंग इसलिए ज़रूरी है कि स्केलिंग से जो चीज़ें नहीं निकल पाती हैं वो पॉलिशिंग रिमूव कर देती है। वो एक सॉफ्ट डिपॉजिट ही होता है, एक तरह का मटेरियल होता है जिसको हम अप्लाई करके, जैसे हमारा टूथपेस्ट होता है वो उसी तरह का होता है, उसको हम अच्छे से अप्लाई कर देते हैं और उसके साथ मशीन के साथ हम उसको क्लीन कर देते हैं। उससे ये है जो थोड़ी बहुत येलोनेस होती है, जो स्केलिंग करके थोड़ा बहुत खुरदरापन आ जाता है, रफनेस हो जाती है, वो उससे क्लीन हो जाती है। तो बेसिकली स्केलिंग एंड पॉलिशिंग इसी को कहते हैं, जिससे ये है कि आप पहले करवा लो, उसके बाद आपकी जो गम डिजीज़ है वो वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं रूट कैनाल सिस्टम पे। रूट कैनाल क्या होता है, उसको हम कह देते हैं कि नस का इलाज करवाना। ठीक है जी। वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम ना आए। तो अगर आपको कुछ भी ठंडा गरम फील हो रहा है, जैसे हम कह देते हैं जी हमारे दांतों में बहुत ज़्यादा गरम लगता है, या कुछ भी गरम चीज़ खाते हैं या ठंडा खाते हैं, अगर तो देखो आपको ठंडा लग रहा है, इसका मतलब कि वो बिल्कुल पीक पॉइंट पे है, कि मतलब आपका पीक पॉइंट पे है, आपको और ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है बाद नसों, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे पल्प कह देते हैं हम, नसों की प्रॉब्लम ही होती है ये। तो वो अगर ठंडा आपको लग रहा है, इसका मतलब आपको गर्म भी लगना शुरू हो सकता है। और अगर गर्म शुरू है, इसका मतलब वो कीड़ा काफ़ी नीचे तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से जड़ तक पहुंच गया, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है, जिसको हम कह देते हैं कि इन्फेक्शन ही है। छोटी सी कैविटी होती है, फिर धीरे धीरे करके बढ़ती है। इट विल टेक लॉन्ग टाइम। जैसे कि हम कह देते हैं एकदम से वो कैविटी इतनी बड़ी नहीं हो जाती। कोई पेशेंट आते हैं हमारे पास, कह देते हैं डॉक्टर साहब अभी तो थी नहीं, वो एकदम से इतनी ज़्यादा हो गई, तो वो उनको दिखती नहीं है, बिकॉज वो मुंह में इतना देख नहीं सकते ऊपर या नीचे, राइट। तो वो इट विल टेक टाइम, जैसे 2 to 3 ईयर्स, 1 से 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल टाइम लेता है दांत खराब होने में। ठीक है जी। तो वो चीज़ होती है उसमें, बस वही है। रूट कैनाल में हम क्या करते हैं, सिंपली पहले तो हमें एक्सरे करना होता है। एक्सरे भी हम तो करते हैं अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो, क्योंकि एक्सरे से भी बहुत ज़्यादा रेडिएशंस आती हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं स्पेशली लेडीज़ को। ठीक है जी। वो चीज़ हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम ओपनिंग करते हैं पूरा, फिर उसको क्लीन करते हैं अंदर से, फिर उसके अंदर मेडिसिन भरते हैं। जहाँ से हमने नस को निकाला होता है वहीं पे हम अंदर उसको दवाई भर देते हैं, जो जड़ होती है उसी के अंदर से हम निकाल के उसमें हम पुट अप कर देते हैं। ठीक है, जिसको हम ऑब्चुरेशन कह देते हैं इन डेंटल लैंग्वेज। फिर उसके बाद क्या है कि कैपिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हम आ जाते हैं कि कैपिंग्स कितने टाइप्स की होती हैं, वो भी काफ़ी टाइप्स की होती है। पहले मेटल की कैपिंग चलती होती थी, पहले के टाइम में, राइट। अब भी चलती हैं, बट अब लोग बहुत अवेयर हो गए अपने एस्थेटिक प्रूवन को लेके, कि हमें दिखने में जैसा हमारा, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦੰਦ ਜਿਹਾ ਲਵਾਇਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। बिल्कुल अब भी वो सोने के लोग लगवाते हैं। फॉरेन कंट्री में ज़्यादा ट्रेंड है, जैसे म्यूजिशियंस हो गए, आपके सिंगर्स हो गए, उनको डायमंड के हो गए, गोल्ड के हो गए, सिल्वर के हो गए, वो लोग लगवाते हैं। यहाँ के लोगों के अब अवेयरनेस ये है कि हम सुंदर दिखें बेसिकली, कि जैसे हमारा दांत का कलर है वैसे ही कलर का हमारा दांत हो। अगर आप आगे वाला दांत है, आप स्माइल करोगे, मेटल का लगाओगे, तो वो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि वो अच्छा नहीं दिखेगा, है ना। तो वो चीज़ हो जाती है। तो हमारे पास वही एक मेटल का है, जिसको मेटल भी यूज़ करते हैं कोई कोई पेशेंट। बाकी एक PFM बोल देते हैं, पोर्सिलिन मेटल फ्यूज्ड बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या है कि पोर्सिलिन फ्यूज्ड मेटल में, जैसे हमारे पास ये है, इसके अंदर आपका मेटल होता है, बाहर आपका पोर्सिलिन होता है। तो जैसे आपका दांत का कलर है वैसा ही सेम आपका दूसरा हो जाएगा। और जो हमारे पास है ईमेक्स बोल देते हैं इनको, और इसी में लैमिनेट्स आ जाते हैं, इसी में जरकोनिया बोल देते हैं इसको। तो इसके अंदर मेटल नहीं होता है। कल को आप जैसे MRI करवाते हो, कुछ भी करवाते हो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर टू मेटल। और इसकी लाइनिंग्स भी बहुत अच्छी होती है, कंफर्टेबल होता है, और इसका जो बायो कंपैटिबल है बॉडी के साथ, कोई इतनी दिक्कत है नहीं इसमें। और एस्थेटिकली भी प्रूवन है कि जैसे आपका दांत का कलर है वैसा ही है। जैसे अगर आप लाइट पास करते हो दांतों को तो वो शेड जाता है, वैसे इसमें भी है। इसकी 5 साल की वारंटी कार्ड भी हम पेशेंट्स को देते हैं। और जैसे किसी ने दांतों का, हम कह देते हैं कि जी हमें दांत टेढ़े मेढ़े हैं, अगर वो वायरिंग नहीं लगवाना चाहते, कि जी हमारी उम्र होगी, हम वायरिंग नहीं लगवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लैमिनेट्स लगा देते हैं, जिसको हम कह देते हैं स्माइल डिज़ाइनिंग। कि जैसे अगर टेढ़े मेढ़े दांत हैं, दांतों में गैप है, हम 2-3 साल नहीं वायरिंग लगवाना चाहते, तो उसके लिए हम लैमिनेट्स लगा देते हैं।
तो उसमें ये होता है कि जैसे आपका नॉर्मल अगर आपके टेढ़े ऐसे दांत भी सीधा करके और उस पर लैमिनेट्स पुट कर देते हैं तो वो अच्छे से हो जाता है। बाकी और डिजीज़ में मेनली तो अल्सर्स होते हैं जो धीरे धीरे करके बड़े भी हो जाते हैं, कुछ अल्सर्स, और कुछ नॉर्मल भी हो जाते हैं। और ਜਿਹੜੇ ਅਲਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗਮਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ये दांत के बीच में भी हो जाते हैं। दांत के बीच में तब होते हैं जब आपका पस पड़ जाती है नीचे, जिसको हम कहते हैं रेशा। अगर आप दांत बिल्कुल ख़राब है आपके दांत और धीरे धीरे करके आप दवाइयाँ खा रहे हो कि जी बाद में जाएंगे डॉक्टर के पास, विजिट बाद में करेंगे, और धीरे धीरे करके क्या होता है वो दांत तो वैसे ही सड़ गया अंदर से। जब वो सड़ जाता है दांत तो नीचे उसको बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती है, जिसको हम कह देते हैं कि जी दांत पूरा बंद है आपका। जब तक हम अंदर से उसको होल नहीं करेंगे ऊपर से तो वो जगह नहीं बनती उसकी, तो वो फोड़ा कह देते हैं हम कि जी फुंसी होगी, जो आपके मसूड़े होते हैं उसके बाहर से फुंसी निकलने शुरू हो जाती है, तो वो नीचे पस बन जाती है आपके मुंह में। जैसे आपके यहाँ पे जो जॉ लाइन होती है वहाँ पे क्या है, पस बन जाती है नीचे। तो पस बनते बनते क्या होता है कि वो बाहर की तरफ फोड़ा बना लेता है, क्योंकि ऊपर से तो वो निकल नहीं पाता है। तो एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पेशेंट्स तब आते हैं जब उनका मुंह सूज जाता है। वो धीरे धीरे करके उसको जगह मिलती नहीं और धीरे धीरे करके मुंह सूज जाता है उनका, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये चीज़ है। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੈਵਿਟੀ, ਕੈਵਿਟੀ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ, ਇਹ ਕੈਵਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ करती है जी? कैविटीज़ के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक सिंपल दांत है आपका, कैविटी एक क्लास 1 से लेके क्लास 5 क्लास 6 तक होती है। क्लास 1 में कैविटीज़ में क्या होता है, जो ऊपर कैविटी बन जाती है, अगर आप ब्रशिंग नहीं करोगे तो वो पिट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे पिट एंड फिशर्स बन जाते हैं। वो बिल्कुल छोटी सी होती है, वो आपको दिख भी जाती है आपके मुंह में। अगर आप उसको वहीं पे कंट्रोल कर लेते हो तो वो ज़्यादा डीप नहीं जाती है। अगर आप सोचते हो कि छोटा सा है बाद में जाएंगे, तो वो धीरे धीरे करके क्या है डेवलप होती जाती है, वो बढ़ती जाती है दांत की। वो छोटा सा पिट होगा लेकिन वो नीचे जाके दांत के नीचे जाके नस को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से सडन इफेक्ट आता है और सडनली आपको ठंडा गर्म शुरू हो जाता है लगना, और सडनली वो आपको इतना डिग्रेड कर देता है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देता है दांत को, वो नस को पकड़ लेता है और उसकी वजह से धीरे धीरे अपसेस बन जाती है नीचे, जिसको हम कह देते हैं रेशा बन गया। धीरे धीरे रेशा बन जाता है और वो बाद में ख़राब हो जाता है दांत। ये चीज़ है। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। जैसे ਅੱਛਾ जी, ये बन जाता है धीरे धीरे, जैसे यहाँ पे कैविटी लगी है, इसको पिट एंड फिशर्स बोल देते हैं। ओके। ये कैविटी लगी, धीरे धीरे करके अंदर से उन्होंने क्या किया, कैविटी ने यहाँ पे कैविटी चली गई नीचे पल्प में, धीरे धीरे करके नीचे अपसेस बनती जाती है। ये जैसे रेड रेड है, ये अपसेस बनी हुई है, जिसको हम पस रेशा बोल देते हैं। वो धीरे धीरे करके यहाँ से जो आपका ये मसूड़ा है यहाँ से फोड़ा बना देता है। ओके जी। ठीक है जी, तो जिसकी वजह से ये बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो इसका इलाज यही है, अगर आप रूट कैनाल टाइम से करवा लेते हो तो वो इजी रहता है, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा मुंह सूजता है। वही पेशेंट तभी आता है हमारे पास जब उसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रॉब्लम हो, नहीं तो डेंटिस्ट के पास कभी भी विजिट नहीं करता है। क्यों ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗਣਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? उसी को ही सर कैविटी कहते हैं। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਕੈਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। असल में वो कैविटी होती है, इंग्लिश में हम कैविटीज़ बोल देते हैं। एक सिंपल कैविटी को हम कैविटी बोल देते हैं, ज़्यादा होगी तो हम कैविटीज़ बोल देते हैं, राइट। तो उसमें ये होता है, वही है छोटा सा, अगर हम ब्रश नहीं करते हैं टाइम से, कुल्ली नहीं करते हैं, अगर हम माउथ वॉश भी नहीं करते हो, तो धीरे धीरे कुछ भी आप खाते हो तो वो कैविटीज़ लगती ही लगती है। स्पेशली आप मीठा खाते हो, राइट, मीठा खा के आप रात को सोओगे विदाउट ब्रशिंग तो भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप रात को सोते हो तो आपको ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात को ही सारे कीटाणु जो जर्म्स होते हैं वही आपके मुंह में, आप ये सोचो दिन में आप कितनी चीज़ें खाते हो, 36 चीज़ें खाते हो। मेरा मानना ये है कि आप अगर छोटा सा बिस्किट भी खाते हो रात को, कि आपने ब्रश कर लिया, एक छोटा सा बिस्किट ही तो खाया है, कोई इशू नहीं है, तब भी आपको उसके बाद भी ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है। ब्रश नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे, क्योंकि स्लाइवेशन नहीं बनती रात को, जब आप सोते हो तो आपका स्लाइवा भी धीरे धीरे बनता है, जब आप बोलते हो तो आपका थूक बनता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियाज होते हैं वो फ्लश आउट होते रहते हैं। ठीक है, तो सुबह कैविटीज़ कम होती हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो स्लाइवा है, थूक, वो बनता रहता है आपका, आप बोलते रहते हो, बनता रहता है, खाते पीते रहते हो, और जब आप सोते हो रात को तब आपका जो स्लाइवेशन होता है वो बहुत स्लो उसमें होता है, राइट। तो वो बनता नहीं है आपका। तो जब आप सोते हो तो उस टाइम आपको ध्यान रखना होता है कि आप ब्रश करके ही सो। साथ में एक इंटरडेंटल फ्लॉसेस होते हैं जो लोग
अवेयर नहीं है उसके थ्रू, जैसे एक थ्रेड होता है, कुछ भी खाना फंसता है या ब्रश करने के बाद भी जो जिनके टाइट कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जैसे आपके दांत बहुत टाइट हैं, आप ब्रश करोगे लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से गम डिजीज़ हो जाती हैं, कैविटीज़ लग जाती हैं, राइट। तो उसमें आप डेंटल फ्लॉस कर सकते हो। फ्लॉसिंग एक ये सिस्टम है कि वैक्स से बना होता है, कॉलगेट के आते हैं, पेप्सोडेंट्स के आते हैं, जो ब्रांड्स आते हैं उनका 70-80 रुपीज़ का आता है शायद से वो। आप नॉर्मली उसको लो, अपना थ्रेड निकालो और फ्लॉसिंग करो। अगर आप वो करना शुरू कर दोगे, उससे आपको कैविटीज़ भी नहीं होंगी, कोई गम डिजीज़ नहीं होंगी, आपको डेंटिस्ट के पास आना भी नहीं पड़ेगा। बट ये है कि आपको हाँ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आजकल की जनरेशन बहुत कुछ खाती है। पहले इतना जंक फूड नहीं होता था जो अब है ना। तो पहले के टाइम में और अब के टाइम में बहुत फ़र्क है, ਜੰਕ ਫੂਡ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि आप ये देखो ना, अगर आप बर्गर खाते हो सिंपल, उसमें चीज़ की लेयर्स कितनी होती है, चीज़ तो सबसे ज़्यादा डिफेक्ट करता है आपके दांतों को, है ना जी। और बर्गर हो गए, अगर आप सिंपल रोटी दाल रोटी खाते हो तो उनमें तो फिर भी न्यूट्रिशंस होते हैं। जो आप चीज़ खाते हो, बर्गर टिक्की खाते हो, है ना, सारी चीज़ें उनमें एक बर्गर में होती है, तो वो सारी चीज़ें फ्राइड हैं। वो आप खाओगे तो कहीं ना कहीं वो दांतों में फंसेगा, और आप अगर दिन में भी खाते हो कहीं ना कहीं टाइट कॉन्टैक्ट्स हैं, है ना, तो उसमें भी फंस जाता है वो। धीरे धीरे ब्रश करोगे वो निकलेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं कैविटी वो बनेगी ही बनेगी। और वो तब नहीं पता चलता है, 1-2 साल बाद पता चलता है, जब दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए डेंटिस्ट के पास विज़िट करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं तो 1-2 महीने में आपको विज़िट कर लेना चाहिए। और जो सफाई है वो भी 6 महीने बाद आप करवा लो एक बार, तो ज़रूरी है, ताकि आपका डेंटिस्ट जो है वो बता भी दे कि भैया आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, और जो छोटी सी कैविटी है उसको वहीं पे स्टॉप करवा लो, ताकि आपका रूट कैनाल का सिस्टम ना बने, कि आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। उससे आपके पैसे भी बचेंगे, जो चीज़ आपकी 4-5 हज़ार में होगी वो आपकी वही 500-600 रुपये में हो जाएगी, अगर आप वहीं पे उस चीज़ को स्टॉप कर लेते हो। जैसे अब लोग कहते हैं कि डेंटिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत महंगी है डेंटिस्ट्री। बट डेंटिस्ट्री महंगी भी है क्योंकि इसका काम भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप छोटी सी कैविटी भी है, रूट कैनाल करते हो, साथ में अगर हम अपनी कॉस्ट कम कर दें रूट कैनाल की, वो तो चलो कोई इशू नहीं है, बट जो बाहर से लैब से बन के आती है कॉस्ट, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे अब लैमिनेट्स हो गए आपके सारे, ये कहते हैं हम कैप्स हो गए, क्राउन्स हो गए, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें भी वही पेशेंट हमें देगा तो हम आगे जाके रेफ़र कर सकते हैं, जी आपने ये कॉस्ट लेनी है इनसे। तो वो चीज़ें हैं। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੰਦ ਟੁੱਟਣ ਦੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਦੰਦ ਭੁਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ये छोटी सी, मैंने आपको बोला ना, एक छोटी सी चीज़ है कैविटी, ये सारी समस्याएं वहीं से ही शुरू होती है और वहीं पे ख़त्म हो जाती है। ਟੁੱਟਦਾ ਵੀ ਕੈਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। कैविटी, और कभी कभी ये भी चांसेस होती है, अगर आप खेलते खेलते कोई फॉल हो गए, कहीं पे गिर गए, ब्रेकेज हो गया, वो तो अलग डिफरेंट इशू हो गया। एक जो दांत भुरता है वो कैविटी छोटी सी चीज़ है। डेंटिस्ट्री में बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं होती है और बहुत कम चीज़ें भी नहीं होती है। शुरुआत एक छोटी सी कैविटी से ही होती है और ख़त्म भी वहीं होती है ना। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੰਦ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ और ਦਿੰਦਾ। साथ वाले दांत को भी इफेक्ट करना शुरू कर देता है। आपको नहीं पता कीड़ा कहाँ लगा है। अगर दांत आपके यहाँ है, अगर ऊपर लगा है फिर तो एक सिंगल दांत को करेगा, अगर गलती से साइड में लग गया तो साइड से दोनों दांत कांटेक्ट में है तो एक की तरफ ये दूसरे की तरफ भी बढ़ेगा, एक दांत से दूसरे की तरफ भी वो धीरे धीरे बीमारी बढ़ेगी। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀੜੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਗਰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਅਵੇਅਰ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ? मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे ज़्यादा कमी वही है अवेयरनेस की। आजकल की जो जनरेशन है वो फिर अवेयर है अपने बच्चों को लेके, खुद को लेके। जो पहले की जनरेशन है वो थोड़े से अवेयर कम है, क्योंकि एक तो ये है कॉस्टली बहुत है। सबसे बड़ा जो सिस्टम है इस चीज़ का डेंटिस्ट्री का वो है कि वो कॉस्टली बहुत है। अब मैं अगर स्केलिंग का चार्जेस, आप बाहर शहरों में जाओगे स्केलिंग 2000-3000 से कम नहीं लेते कोई भी, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे नॉर्मली हम 350-400 रुपये में कर देते हैं स्केलिंग। तो अगर आप बोलते हो कि इसमें भी ज़्यादा है ना, वो चीज़ हो जाती है, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगती है वो चीज़।
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਕਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕੇਲਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ 2-2000 रुपए ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 300 रुपए 300 रुपए 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। बिल्कुल, मेरा खुद का क्लिनिक था चंडीगढ़ में, तो मैं खुद वहाँ पे कॉस्ट, वहाँ के लोग वही एजुकेटेड लोगों का भी आ जाता है थोड़ा सा। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਸੀਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੰਦ ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੰਦ ਨੂੰ ਡੈਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? डेड का मतलब वही है कि आप रूट केनाल ट्रीटमेंट जो है, जब दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जब आपको पेन होना शुरू हो जाता है और जब आपकी अब्सेस बन जाती है, रेशा बन जाता है, तभी हम उसको डेड करते हैं। अगर उससे पहले हमें डेड करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब दर्द ना हो। अगर कैविटी है, कैविटी को तो हम रिमूव करके उसमें हम फिलिंग कर सकते हैं। फिलिंग्स भी 2 टाइप्स की आती है, नॉर्मल जीआईसी हो गया, एक लेज़र वाली फिलिंग कह देते हैं जिसको, हमारी लैंग्वेज एक कॉम्पोजिट कहते हैं और जो नॉर्मल लोग हैं वो लेज़र कह देते हैं। उसका ये है कि जैसा आपका दांत है वैसा ही कलर हो जाता है उसका, और उसकी कंपैटिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, राइट। तो उसमें वो चीज़ होती है। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤਾਰ ਚੜਾਉਣੀ, ਦੰਦ ਡੈਡ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪ ਚੜਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਰजेस ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ? चार्जेस का काफ़ी फ़र्क है। आप मान के चलो कि 30-40% तो है ही, ठीक है, बेसिकली। और बाकी अगर आप, डिपेंड करता है कि आप क्वालिटी कौन सी लेते हो। जो मैंने काम करना है, देखो वो तो मैंने ही करना है, वो तो मेरे ही रेट्स हैं। अगर पेशेंट कोई कह भी देता है जी कम कर दो, हम कर भी देते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। बट जो बेसिकली देखा जाए कि क्राउन्स हैं जो आप कैप्स लगवाते हो, उनमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स आते हैं। जैसे मैंने आपको कहा PFM आता है जिसमें मेटल और पोर्सिलिन फ्यूज्ड होता है, एक जरकोनियाज आते हैं, उसके बाद लेमिनेट्स हम लगाते हैं जिनको हम कह देते हैं कि ईमेक्स क्राउन्स आते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस है। बाहर आपका 10,000 रेट है, 10,000 से लेके 15 तक आपका जर्नल एक दांत का आपका रेट है। यहाँ पे हम वही 4500 में करते हैं बेसिकली। और जो उससे कम का है, अगर आप मेटल वाला लगाते हो, मेटल फ्यूज्ड, वो 1200 से शुरू है, आप 1200, 1500, 2000 तक का है। वो क्वालिटी वेस्ट पे डिपेंड करता है कि हम पेशेंट को सारी क्वालिटीज़ बता देते हैं कि जी हमारे पास ये चीज़ें हैं, अब आपने देखना है कि आपने कौन कौन सी चूज़ करनी है वो। क्योंकि मेरा देखो, जो अगर मैं रूट केनाल करती हूँ, मैं नॉर्मली चाहे गम डिजीज़ के लिए स्केलिंग कह दो, आप स्केलिंग करती हूँ या पॉलिशिंग करती हूँ, वो तो मेरा काम है। बट जो मेन जो खर्चा है वो है कैप्स का, है ना जी। तो वो बाहर से ही बन के आती हैं, तो मेन खर्चा उसी का ही है। बाकी जो इधर का है वो तो फिर कम खर्चा है। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹ हम ब्रेसेस वगैरह लगवाते हैं। आजकल ब्रेसेस में भी मेटल की चलती थी पहले, अब आ गई हैं सेरामिक और इनविजिलाइनर बोलते हैं जिनको, क्लियर अलाइनर्स बोलते हैं। तो पहले मेटल्स की लगती थी। मेटल्स में ये होता था कि काम दोनों सेरामिक और मेटल दोनों एक ही काम करते हैं, टाइम उतना ही लगता है, बट ये है कि मेटल का दिखता है और सेरामिक दिखती नहीं है। ये है। तो जो पेशेंट, कुछ लड़कियां होती हैं, जैसे मेरे पास पेशेंट्स आ जाते हैं कि जी दिखनी नहीं चाहिए वायरिंग, कोई ऐसी चीज़ बताओ कि वायरिंग ना दिखे हमारी। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤਾਰ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤਾਰ ਪਈ, ਹੁਣ ਪਤਾ नहीं लगता, दिखेगी। उसमें सेरामिक है, वो दिखती नहीं है, दूसरी दिखती है मेटल वाली। उससे भी अगर आप अपग्रेडेशन में जाना चाहते हो, आजकल जैसे 2014 में शुरू हुआ था, क्लियर अलाइनर्स बोल देते हैं हम उनको। उसमें एक प्लास्टिक टाइप का गार्ड ले देते हैं हम, आपके इम्प्रेशन ले लेते हैं, बाहर से बन के आते हैं वो सिंपल। आपने नॉर्मली, हमने इम्प्रेशन ले लिए, आपकी ट्रेस दे दी हमने आपको, तो आपको हमारे पास विजिट नहीं करना पड़ता डेंटिस्ट के पास। हमने सिर्फ आपका काम करके दे दिया, आपको ट्रेस दे दी, 2-2, 1-1 महीने बाद हम आपको ट्रेस चेंज करके दे देते हैं। वो थोड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि वो अब टेक्निक आई है, फॉरेन में यही टेक्निक यूज़ करते हैं। उससे ये आपको छाले नहीं पड़ते हैं, दर्द नहीं होता है, बहुत गोलियां नहीं खानी पड़ती है। तो वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है चीज़ों का। जैसे जैसे न्यू टेक्निक्स आ रही हैं, वैसे वैसे चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ गया है। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਕਿਹਾ, ਤਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ? नहीं, कमज़ोरी नहीं आती है, बस हाँ ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत बोन लॉस हो जाता है। अगर आप ज़्यादा, अगर ज़रा सा भी फोर्स, हमने 2 mm का लगाना है और आपने 3 mm का लगा दिया, तो उसमें बोन लॉस हो जाता है। बट इतना नहीं होता है, 2 mm और 3 mm का ज़्यादा कोई इतना वास्ट नहीं है, छोटा सा है। वो ज़रा सा हो भी जाए तो वो डॉक्टर मैनेज कर लेता है उस चीज़ को, बट इतना कोई
वास्ट नहीं है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है या कुछ ख़राब है, क्योंकि दांतों में तार हम तभी लगाते हैं किसी के बाहर की तरफ है, किसी के टेढ़े मेढ़े दांत है, क्राउडिंग है, तब हम बेसिकली बोलते हैं पेशेंट्स को कि आप ये चीज़ करवाओ। अदरवाइज़ ज़रूरत तो है नहीं ब्रेसेस की, जब तक आपकी क्राउडिंग और टेढ़े मेढ़े दांत ना हो। और बाकी बच्चों में ज़्यादा है, अगर बच्चों में टेढ़े मेढ़े दांत हैं या ऊंचे हैं तो उनको पहले से ही 15-16 साल से हम कह देते हैं कि जी इनकी लगवा लो आप ब्रेसेस, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि तब कैल्सिफिकेशन हो रही होती है बच्चों की हड्डियां, हम कह देते हैं कि इतनी मजबूत नहीं है, सॉफ्ट होती हैं, राइट। तो उसमें ये है कि जैसे आप ढाल लोगे किसी चीज़ को वैसे ही ढल जाएगी, राइट। अगर आप 20 साल से ऊपर 25 साल से ऊपर करवाते हो वो मजबूत हो जाती है। अगर आप नॉर्मली आपने तार से उसको इधर है आपने सीधा कर दिया उसको, फिर उसके बाद हमें रिटेनर्स तो देखो लगाने पड़ते हैं रिटेन करने के लिए, कि जैसी आपकी शेप थी उसी शेप में रहें, उसके लिए हमें रिटेनर्स लगाने पड़ते हैं। बट जब ज़्यादा उम्र हो जाती है तो उसमें अगर आप रिटेनर निकाल देते हो फिर वो उसी शेप में आने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको लगता है आपके बच्चे के दांत बड़े आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं या कोई दांत आ नहीं रहा है, तो आपको विजिट करना चाहिए। ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਲਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। सबसे पहले तो ब्रशिंग 2 टाइम्स, सुबह उठ के और रात को। सुबह चाहे आप नहीं भी करते हो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई इशू नहीं है, करना बहुत ज़रूरी है, बट रात को बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जर्म सबसे ज़्यादा रात को ही होते हैं, तो वो करना बहुत ज़रूरी है ब्रशिंग। दूसरा आप ये कर सकते हो कि विज़िट करो डेंटिस्ट के पास। जब भी आपको लगे कि मेरे को कोई तकलीफ़ है या तकलीफ़ नहीं भी है, तब भी आप विज़िट करो कि अगर कोई छोटी मोटी चीज़ हो तो वो डेंटिस्ट आपका वहीं पे स्टॉप कर दे उस चीज़ को, राइट। ये चीज़ है। एंड बाकी आपको नॉर्मली माउथ वॉश करो, लिस्ट्रीन, कॉलगेट, जो भी आपको लगता है किसी भी ब्रांड का, सब में एक ही चीज़ है, कोई किसी में ज़्यादा है कोई किसी में कम है, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो बेसिक। बस ये जैसे हम दंत मंजन। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਤੋ ਸਾਡਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਪਛੜਿਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ? हमारे पास नॉर्मल स्केलिंग से लेके सर्जिकल इम्प्लांट्स तक सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे हमारे पास डॉक्टर की टीम भी है, अगर किसी ने ऑर्थोडोंटिक वायरिंग करवानी हो, ब्रेसेस बच्चों के, तो हमारे पास डॉक्टर बाहर से आते हैं। अगर इम्प्लांट्स करवाने हो, जिसको हम कह देते हैं आजकल न्यू टेक्निक चली है इम्प्लांट्स की, अगर किसी ने उतारने चढ़ाने वाले दांत नहीं लगाने, किसी के मुंह में एक भी दांत नहीं है, तो हम इम्प्लांट बेस्ड डेंचर्स लगा देते हैं पेशेंट को, कि इम्प्लांट्स पुट करके उसके बाद हमने डेंचर्स लगा दिए। साथ में रूट केनाल्स हो गए, कैपिंग्स होगी, स्माइल डिज़ाइनिंग बोल देते हैं हम, टूथ वाइटनिंग, जैसे हम ब्लीचिंग कर देते हैं पेशेंट्स की, है ना, तो वो भी है। साथ में गम डिजीज़ के जैसे सर्जिकल पार्ट्स होते हैं, अगर किसी का लास्ट में कोई सर्जरी करनी हो, गम सर्जरी, जिसके मसूड़े बिल्कुल नीचे हैं दांतों से, जैसे हम कह देते हैं कि दांत यहाँ तक है, मसूड़ा यहाँ तक होता है आपका, वो बिल्कुल नीचे आ जाता है ना, नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलें तो हम उनकी गम सर्जरी भी कर देते हैं। जैसे प्लांटेशन कर देते हैं, एक जगह से गम निकाल के दूसरी जगह लगा देते हैं हम, तो उससे ये है कि आपका दांत जो है सेव हो जाता है, उसको एंकरेज मिल जाती है, मजबूत हो जाता है। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੈਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀੜਾ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਛੋੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਰੱਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਵੇਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਤ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਮੈਲ ਨਾ ਆਵੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੌਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਦੰਦ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ
ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।